Right, I'm going to a podcast recording and I'll be discussing menopause. And I thought, you know what, I should have put the camera on and you should have seen me. Get ready. Right, let's see. So, just need, I'll put some more lipstick on later, but a little bit of a tint. Now I need to do my mascara. Then I'll finalise my hair as well. Put my clothes on. And we'll be ready to go for our recording. There should also be a iftar recipe recording there as well. Let's just put the mascara on. I'm just going to put the mascara because I like to do it standing up. That's both eyes done. Keeping it not too bright, and then we'll just finish off our hair, and I'll do the lipstick again later. What to do with that kind of hair? Yeah, I think it's done a good job. Go through it. Need to pack my bag with a few essentials and my change of clothing and footwear. Both outfits coincidentally are shades of green, just a coincidence really. Well, I just think one block colour will look better and more appealing to the eye. Right, I'm just going to spray my setting spray, Charlotte Tilbury. Our trusted friend Charlotte. Not that it's going to budge, I'm only going to be there I think about a couple of hours, 2 to 3 hours. But it is an hour's drive from here, just under an hour, depending on traffic. So let me show you what I've got. I've got ready out for myself, and the light green one is what I've chosen. I'm just going through some of my outfits here, and that's a Maria B one, and then we've got this one as well. Just a little disappointed, to be honest, with Maria B, that she just leaves the back absolutely plain. I mean, Cardi does more than that. I had some more selections there, but these are all the selections. It's got a busy week with iftaris and everything, so just been leaving them there and ironing them, steaming them. That's that. That's the dupatta that goes with it. It's not going to stay on the head. And the shoes I'll be wearing are those with that. And the bag I've chosen for today is my Louis Vuitton. It's also a light colour. It's got a lovely gold chain. Not that that's going to be picked up on camera, but anyway. जबरदस्त है यार. This is really good. ये मैं YouTube के लिए ना मैं बस कुछ 5 मिनट मैं बहुत मैं लाइक आऊँगा. मैं नकम्मी हूँ ना उसके नहीं पर ये बहुत अच्छा है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं, बिकॉज मैं इतनी बिजी हूँ ना रिकॉर्डिंग के लिए. हम कहाँ गए थे तो वहाँ पे ये उनकी जो उनका सोशल मीडिया रेस्टोरेंट में हैंडल किया था उसके पास ये था, एंड इट वाज रियली गुड.
क्योंकि मेरा बेटा भी करता है ना। अच्छा, ये है, मैं शनीला जी के घर आई हूँ, तो हम लोग अभी रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। Why am I speaking in Urdu? This it doesn't matter. Urdu भी English recording करने. We're about to record for a podcast on a very important topic, and this will be put up after the podcast. So you must watch the podcast. It's on a very important women's health. और इनके घर आई, बहुत ही खूबसूरत इनका घर है। तो शनीला जी, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। आपके आने का बहुत शुक्रिया समीना, आप इतनी दूर से आई। मुझे सबसे पहले ये था कि आप इतनी दूर से आ रही हैं, इतनी मोहब्बत से आई। मैंने आपसे एक दफ़ा बात की और आपने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, इतने प्यार से। और हम लोगों ने बात की है अबाउट मेनोपॉज, और इसके बारे में मैं पॉडकास्ट करना चाह रही थी कि हम ज़रूर बात करें। ये औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो हम लोग बस अब शूटिंग करने लगे हैं इसकी, और आप लोग ज़रूर देखिएगा। समीना जी, और चैनल का नाम बताएं सबको। जी, कुछ मज़ेदार सी बातें, और इन्हीं कुछ मज़ेदार सी बातों में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब over to Shanila Ji's channel, YouTube का चैनल, कुछ मज़ेदार सी बातें। थैंक यू सो मच। Lovely, thank you। हमारे सोसाइटी में स्पेशली इस चीज़ को एक टबू समझा जाता है। बिल्कुल। और औरतों को सीरियस नहीं लेते। औरतों को हमारे कल्चर में क्या सीरियस लेना, डॉक्टर्स ही नहीं सीरियस लेते। डॉक्टर हम जीपी के पास जाएं तो वो आपको, जब आप जाते हैं और अपने सिम्टम्स बताते हैं, वो आपको रद्द कर देते हैं, कहते हैं अच्छा एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ को अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही। आपकी सर्जरी में कोई ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो कि मेनोपॉज के एक्सपर्ट्स हों। कुछ मज़ेदार सी बातें आपके किचन से, जो सीरीज़ हमने रमज़ान में शुरू की है, उसमें आज मैं समीना के कैमरे से आपसे बात कर रही हूँ, समीना के सोशल मीडिया से। तो समीना आई हैं आज, और इन्होंने बहुत ही मज़े की डिश बनाई है। अब आप देखिएगा ज़रूर ये प्रोग्राम जिसमें वो बनाएंगी, और आप ज़रूर अपनी अफ्तार डिशेस में, अपनी अफ्तार में शामिल कीजिएगा। बिल्कुल जी। और सिर्फ इफ्तार में नहीं, ये ऐसी रेसिपी है जो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसको थोड़ा सा सॉस डाल के थोड़ा सा मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन ये है, इट्स अ वेरी क्विक हेल्थी रेसिपी। बिल्कुल। एंड ये इंग्रेडिएंट्स आपके घर में होते ही हैं अक्सर, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि आप ये ठंडा भी खा सकते हैं, इसको गर्म भी आप खा सकते हैं। ऐसी चीज़ है। और अगर बच्चे बहुत जैसे जल्दी में होते हैं कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ या मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप उनको हाथ में भी दे सकते हैं, वो फटाफट खाते हुए इसको चले जाएंगे। ये इस तरह की चीज़ है। और हमारी आजकल की जो माएँ हैं जो पतीलों में नहीं घुस सकती, ये उनके लिए बहुत अच्छी। बिल्कुल। हम लोग इतनी, मतलब हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी है जी, काम कर रही हैं। अक्सर औरतें जो है तरह तरह का मुख्तलिफ़ किस्म का काम, अगर ऑफिस में जा रही तो उन्होंने स्कूल में काम करना है, उन्हें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है। तो हम लोग इतनी बिज़ी हैं, वी लुकिंग फॉर ईजी रेसिपीज़, ऐसी चीज़ें जहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स आपके पास हों और आप इतना मज़ेदार सा खाना नहीं बना सकते। बिल्कुल। क्योंकि जब हम काम से वापस आते हैं ना, काम से वापस आके इतना थके होते हैं। आप देखें जो मर्द हजरात हैं वो काम पे जाते हैं, उनको ये होता है कि जब वापस आएंगे तो अफ्तारी रेडी हो। बिल्कुल। लेकिन जो एक औरत काम पे जाती है, उसने आके ये भी देखना होता है कि अफ्तारी मैंने जाके रेडी करनी है। और वो लोग बहुत लकी हैं जिनके हस्बैंड्स घर पे आके उनकी हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल। और इस मामले में मैं कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जैसे ही काम से आते हैं, वो अगर मेरे हस्बैंड अगर आधा घंटा पहले भी आएंगे ना अफ्तारी से पहले, तो वो आके, अगर मैं बना रही हूँ ना, तो उनको ये होता है अच्छा चलो मैं इसके बर्तन समेट देता हूँ, चलो मैं डाइनिंग टेबल पे बर्तन लगा देता हूँ। वो इतने हेल्पफुल हैं माशाल्लाह। और आप अगर कोई भाई हमें सुन रहे हैं, हमारे मर्द हजरात सुन रहे हैं, तो प्लीज़ घर जैसे आप आते हैं अपनी बीवी की थोड़ी सी हेल्प किया करें। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा चेयर अप करती हैं कि देखिए इसको मेरा ख्याल है। काम ये नहीं होता कि हस्बैंड आके काम करा रहा है तो नहीं, वो आपका ख्याल कर रहे तो करा रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सोसाइटी में ये पता नहीं क्यों समझा जाता है कि औरत ने पता नहीं निकाहनामे में साइन किया होता है, दस्तखत किया है कि इसने किचन इसी ने संभालना है, ठीक है, और माँ बाप को भी इसी ने संभालना है। इस मौजू पर भी हम बात कर सकते हैं। और वो माएँ, राइट, उन माओं को मैंने पूछना है जो तरबियत करती हैं अपने बेटों की ऐसी कि वो चाहती हैं कि हमारा जो दामाद हो वो हो घरेलू दामाद, बिल्कुल, लेकिन बेटा जो है वो उंगली भी ना उठाए, ना बच्चों को संभाले, ना किचन में हेल्प करे। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात। ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली पता है क्या, ये घर से ट्रेनिंग शुरू होती है। अगर आपका बेटा आपके साथ हेल्प करा रहा है ना, अगर आपने अपने बेटे को शुरू से अपनी हेल्प कराना सिखाया है, यानी अगर आप अपनी बेटी को कह रहे हो कि थोड़ी सी हेल्प करे, तो बेटे को भी कह रहे हो, जैसे बेटा तुम डिश वॉशर जो है वो खाली कर दो, बेटा आप लॉन्ड्री जो है वो उसको वॉशिंग मशीन में डाल दो या निकाल दो, उसको ये आदत पड़ेगी छोटा छोटा काम करने की। जब उसमें ये आदत होगी तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बीवी का हाथ बिटाएगा। लेकिन अगर उसको आप हमेशा वो आया है तो है मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र थक गया काम तो आया, ये वाला फालतू पानी पिया, मतलब उसके हाथ में आप हर चीज़ दे रही हैं और उसको कुछ नहीं करने देगी, तो वो अपनी बीवी से भी यही एक्सपेक्ट करेगा। हाँ जी, बहुत गलत बात है। और बहुत ही बेचारी जो है ना, मुझे तरस आता है उन औरतों पे, जी, उन औरतों पे मुझे तरस आता है जिनके वो मर्द हेल्प ही नहीं करते, उनकी मियाँ हेल्प ही नहीं करते, और उन्होंने आके काम से उन्होंने बच्चों को भी संभालना है, उन्होंने बच्चों को भी खिलाना है, मियाँ को भी खिलाना है, मियाँ को चाय भी देनी है बना के। ये अफसोस की बात है जी। चलें जी, शुरू करते हैं। रेडी हो गया, शुक्र है मुझे ना ऐसी आई। बिल्कुल, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है शनीला के चैनल पे। कुछ मज़ेदार सी बातें किचन से, आपके किचन से, लेकिन मेरे किचन से नहीं, आज शनीला की किचन से। देखते कैसी आई, खींच ले 3-4। जूते मैंने बदल लिए ये वाले यार। हाँ, अच्छी लग रही है। नहीं, ज़्यादा अच्छी थी। आप थोड़ा पास से लेते हैं। थोड़ा सा अच्छी मारे, अच्छी आई है। आपकी तो बहुत खूबसूरत आई है। उधर उस रोशनी में ना बहुत अच्छी तस्वीर आती है सन की ना।